Hello friends, so today I'm back with the second lecture for the day, and again standard 7th and chapter number 6, natural regions. So this is although a different chapter, it's not in connection with the 4 and 5. Even if you read this as the individual chapter, you will find it easy to recollect all the concepts. There's no concept, it's just the division of the regions around Earth based on the different climatic conditions, different soils, different vegetation, different flora, different fauna. All this stuff is there in this chapter. So, what exactly this chapter talks about, we will be going to see in detail. So, chapter 6, natural regions. So first, there is a question. Question says about tick the boxes in the pictures using the index given on the page 31. Okay, so page 31 पे index दिए हुए. So index ये है कि first definitely I have experience या फिर I have used it. Second, star mark I have just seen it. I have not experienced it. Experience मतलब you have personally seen it, or seen मतलब you have seen it over television, internet, or anywhere you have just see the pictures. Okay. And the cross mark I do not know about it. This is the first time I'm looking at it. Basically ये भी होता है क्या ऐसा करना. Okay. So ऐसा we have to bifurcate and accordingly we have to take mark. Basically we have seen it or experienced it or we have never seen it. So that is definitely your concepts, but मैंने ये देखा है, definitely ये भी देखा है, ये नहीं देखा है, experience नहीं किया. I've just seen it, but कभी experience नहीं किया पास जाके, but ये experience किया हुआ है, ये experience किया हुआ है, और ये भी experience किया हुआ है, but ये मैंने experience नहीं किया. Definitely ऐसे मैं बहुत लोग को देख चुका हूँ. ये I have seen, experience नहीं किया है. I have definitely experienced this kind of stuff, and I have experienced this kind of stuff, but I have not seen. Definitely I have seen this. I have seen this. I have seen this. पर ये नहीं देखा है. ये कैक्टस मैंने देखा है. डेफिनेटली राजस्थान से जो भी बिलोंग करते हैं जनरली उन्होंने ये कैक्टस देखा होगा. और ये मैंने रियल में नहीं देखा. डेफिनेटली फूड वी डेली ईट इट. डेफिनेटली देखा है इसको. पिज्जा एज अ यंग डेफिनेटली देखा, क्या खाया है इसको, और बहुत अच्छे से खाया है. हर महीने में एटलीस्ट एक तो हो ही जाता है पिज्जा डोमिनोज का. ये देखो. ओके चलो कम ऑन. दिस इज मेंदू वड़ा एंड ऑल दैट स्टफ आई हैव सीन. डेफिनेटली ये क्या है मुझे पता भी नहीं चल रहा एग्जैक्टली ये क्या है. प्लीज एनीबॉडी इफ दे नो कमेंट डाउन के व्हाट एग्जैक्टली इज दिस. सो बेसिकली कंडीशन ये था, और द क्रक्स ऑफ आस्किंग दिस क्वेश्चन इज कि देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउसिंग, different types of clothing, different types of flora and fauna. Flora stands for plant life, fauna stands for animal life. Flora प्लांट की जितनी भी डाइवर्सिफिकेशन, प्लांट्स के जितने भी स्पीशीज टाइप्स वगैरह हो सकती है अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशन में, वो सारा कंसीडर फ्लोरा में आता है. फौना में एनिमल्स, और डेफिनेटली फ्लोरा में बर्ड्स भी आ गए. फौना में बर्ड्स भी आ गए और एनिमल्स भी आ गए. एनिमल्स के भी जितने भी टाइप्स है, रेप्टाइल्स है, इनवर्टिब्रेट्स है, वर्टिब्रेट्स है, एम्फीबियंस है, व्हाटएवर काइंड ऑफ एनिमल स्पीशीज देयर is definitely there in the fauna. Okay. Then there is food. If you see, there are different types of food as well. So ये क्या कहना चाह रहे हैं? ये कहना चाह रहे हैं कि there is diversity. ये सब आपको एटलीस्ट अर्थ पे तो मिल जाएंगे. फोटो दिए तो अर्थ के बाहर तो डेफिनेटली नहीं है, because there is no life outside earth. तो ये अर्थ पे डेफिनेटली ये सब आपको मिल जाएगा. तो एक ही अर्थ पे why there are different clothing, different housing, different flora, different fauna, different food? Why? So this is what this chapter says about. Okay, there is a difference, and if yes, why it is a difference, and in that particular differential region, you have a differential environment, what exactly type of flora fauna you use, what exactly type of clothing you use, housing you use, your occupation, your everything. So based on your location, based on your environment, based on your surrounding, you adapt yourself to the condition. So ये chapter में वही लिखा है. Okay, we are there today. आज हम मुंबई में है, suppose whoever is watching it on YouTube or कहीं भी है वो, they are mostly in the urban section or somewhere around in village, but at least they might not have experienced the snow-capped house, this igloo. Definitely we have not experienced this, but this is there on the earth. So where it is, and अगर वो है तो how exactly the life functions at that place. ठीक है, वहाँ पे फ्लोरा फौना कैसा है, तो ये सब हम लोग देखने वाले हैं. तो अर्थ पे जितने भी रीजन है, those are natural regions, क्योंकि वो naturally formed हुए. there is no man made. अगर बर्फ गिर रही है तो man made उसमें कुछ नहीं है. that is naturally snowfall.
ओके। हाँ, उसके एडेप्शन के हिसाब से हम लोग ने क्लोथिंग, हमारा फूड वगैरह चेंज किया है, हमारा हाउसिंग वगैरह चेंज किया है, बट वी कैन चेंज द एनवायरनमेंट। ओके, so there are regions which are naturally developed, and accordingly from that natural regions we have developed ourselves, our skills, occupation, profession, business, clothing, food, flora, fauna, सब कुछ डिफरेंट हो जाता है। okay? तो कितने टाइप के नेचुरल रीजन्स है इस चैप्टर में हम लोगों को वही देखना है, और एग्जैक्टली कुछ भी नहीं है इस चैप्टर में। ठीक है, इट्स वेरी वेरी इजी। ये चैप्टर का क्रक्स अगर मैं बताऊं, ये चैप्टर का हार्ट में बताऊं, तो एग्जैक्टली दिस टेबल, this table which goes on to the two pages 32 and 33 is the heart and the crux of this chapter। जिसको ये समझ में आ गया, समझ लिया उसने, exact differentiate कर लिया उसमें, तो he can grip over this chapter। okay, चलो geographical explanation जो मैंने हिंदी में अभी बहुत सारा बताया, these are just written in this। so there are differences in terms of landforms, definitely सब जगह लैंड अलग अलग है, कहीं माउंटेनियस है, कहीं माउंटेनियस नहीं है, कहीं सी के बहुत नजदीक है, कोस्टल, कहीं एकदम आसपास सी है नहीं। so there are different types of landform। climate definitely दूसरा है, कहीं ज्यादा जाएंगे तो ठंडी है, कहीं ज्यादा जाएंगे ठंडी नहीं है, तो ये डिफरेंस है। सॉइल्स है, अलग अलग टाइप ऑफ सॉइल है, एलुवियल सॉइल है जहाँ पे फर्टाइल जमीन है, जहाँ पे जमीन फर्टाइल नहीं है तो वहाँ कोई एग्रीकल्चर का नहीं करेगा। सो दीज आर द डिफरेंसेस। ठीक है, दिस डिफरेंस इज मेनली ड्यू टू अवेलेबिलिटी ऑफ सनलाइट एंड वाटर इन द रीजन। यू वाटर इज सो इम्पोर्टेंट, तो वाटर के बिना देयर इज नो लाइफ। हम कहीं भी दूसरे प्लेनेट पे जाते हैं, व्हाट वी सर्च फर्स्ट इज वाटर, के वेदर देयर इज वाटर और वेदर देयर वाज एनी वाटर। ठीक है, तो इफ देयर इज वाटर वी कैन एटलीस्ट अज्यूम कि शायद यहाँ पे लाइफ रही होगी, या फिर शायद जब लाइफ वी कैन सस्टेन। तो सनलाइट तो डेफिनेटली इट्स देयर एवरीवेयर इन द सोलर सिस्टम। ऐसा नहीं कि सनलाइट इज जस्ट यूनिक टू आवर प्लैनेट, सनलाइट इज एवरीवेयर, because sun के around we the 8 planets, right? Pluto was there, but it was considered dwarf planet, but that rest other 8 planets definitely they receive some amount of sunlight. But the thing is water is just present on the earth, and that makes the unique planet. So difference of the sunlight and water creates different environment in terms of the landfall, climate, and soil. You have studied it as in previous chapter. Difference in landforms, climate, and soil greatly influence the flora, fauna, and even the human life. That's what I'm saying. मेरा clothing, मेरा food, मेरा occupation, मेरा business, मेरा profession क्या होगा, वो उस climate पे डिफाइन। जस्ट एकदम इजी आपको एग्जांपल में देना चाहूंगा। कश्मीर एंड लद्दाख एज वी ऑल नो, वहाँ पे थोड़ा टेम्परेचर ठंडा है। ओके, तो इन दैट सिनेरियो अगर मैं वहाँ एसी का बिजनेस करूंगा तो क्या कर पाऊंगा? डेफिनेटली नहीं, वहाँ लोग एसी नहीं खरीदेंगे क्योंकि ऑलरेडी वहाँ टेम्परेचर ठंडा है। So according to the temperature, या फिर according to the environment surrounding, I have to adapt my business, my profession. So that is what the simple example says about okay, how human life, how flora, how fauna have to adapt to the natural surrounding, to the natural region part out there. Okay, और जिस वजह से डाइवर्सिफिकेशन है, ठीक है, पूरे वर्ल्ड में, पूरे अर्थ पे, उस वजह से there is give rise to variation in the biodiversity in the different parts of the world. Simple as that. ओके, अलग अलग टेम्परेचर है, अलग अलग लैंडफॉल है, अलग अलग सनलाइट आता है। किसी नॉर्दर्न पोल में सनलाइट बहुत कम आता है, साउदर्न पोल में सनलाइट बहुत कम आता है, तो वहाँ का लाइफस्टाइल अलग है। तो वो सब आपको यू हैव टू कीप इट। ऑन द अदर हैंड देयर आर सिमिलरिटीज आल्सो ऑफ क्लाइमेट एंड वेजिटेशन that spread between certain latitudes। एक ही लैटिट्यूड पे आते हैं, ऑलमोस्ट देयर आर सिमिलर क्लाइमेट। ओके, जैसे इक्वेटर के पास आएंगे तो इक्वेटर का जो क्लाइमेट है, पूरा इक्वेटर के आसपास जितने भी कंट्रीज आ रही है, वहां का जो क्लाइमेट है वो ऑलमोस्ट सिमिलर है। ठीक है, तो क्लाइमेट जो इक्वेटर का क्लाइमेट है, इसका बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि वहाँ पे सनलाइट बहुत ज्यादा है। सनलाइट ज्यादा है तो इवेपोरेशन ज्यादा है, इवेपोरेशन ज्यादा है तो प्रेसिपिटेशन, डेफिनेटली रेनफॉल ज्यादा होगा। रेनफॉल ज्यादा है तो वहाँ पे आपकी प्लांट की फ्लोरा की डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा अच्छी होगी, ग्रीनरी बहुत अच्छी, अच्छा ग्रीनरी ज्यादा अच्छी होगी तो डेफिनेटली वहाँ पे एनिमल लाइफ, बर्ड लाइफ, फिशरीज वगैरह ज्यादा अच्छी होगी। तो ये सब इक्वेटर की कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। ये क्यों होगा? क्योंकि वहाँ पे सनलाइट आती है, तो सनलाइट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इक्वेटर पे सबसे ज्यादा सनलाइट आती है, दैट्स यू ऑल। ठीक है, तो देख रहे हो सनलाइट एंड वाटर कितना रोल प्ले करता है। सनलाइट की वजह से प्लांट्स ग्रो होते हैं, प्लांट्स ग्रो होने की वजह से क्या हो गया, रेनफॉल ज्यादा होती है, प्लांट्स डेफिनेटली ग्रो होने। बट ये जो है कि सर्टेन लैटिट्यूड्स पे जो कंट्रीज है उस पे सिमिलर, ऑलमोस्ट ऐसे एग्जैक्ट नहीं रहेगा। इंडिया का क्लाइमेट एग्जैक्ट सब जगह नहीं रहेगा, हाँ, बट ऑलमोस्ट सिमिलर क्लाइमेट के। इंडिया में जितनी बारिश हो रही है उतनी आसपास की बारिश उधर भी होगी। यहाँ पे ग्रीनरी है तो वहाँ पे भी ग्रीनरी होगी, वहाँ पे अगर डेजर्ट है तो यहाँ पे भी डेजर्ट होगा। तो दैट इज व्हाट द सिमिलरिटी। भले डिफरेंसेस है बट सेम लैटिट्यूड पे सिमिलरिटीज भी है। ओके, तो ये जो रीजन है, एज दिस रीजन स्टैंडर्ड ऑन द बेसिस ऑफ नेचुरल फैक्टर्स, दे आर कॉल्ड नेचुरल रीजन्स। अब ये जो है लैंड फॉर्म्स, क्लाइमेट, सॉइल, जैसे मैंने नहीं बनाया, दीस आर नेचुरल फैक्टर्स। ओके, तो ये नेचुरल फैक्टर्स की वजह से अगर डिफरेंशिएट हो रहे हैं, इस वजह से इसको मैं क्या बोलता हूँ, नेचुरल रीजन। सिंपल एज दैट,
as this region stand out on the basis of natural factors, they are called natural regions. Simple. Okay. और ये जो नेचुरल एनवायरनमेंट ये क्या करता है, मेरा अफेक्ट द लिविंग वर्ल्ड इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग्स. ओके. affect the living world including the entire land area on the earth can be divided into these natural regions. तो जितना भी land area है, okay, I'm not talking about the water bodies. Water bodies almost similar है, उनका temperature, उनका rainfall वगैरह सब कुछ similar रहता है. I'm just talking about the land area. वहाँ पे diversification, वहाँ पे plateau, वहाँ पे plains वगैरह होगा. तो बेसिकली ये है क्रक्स. तो जितना भी लैंड एरिया वो डिवाइड हुआ है, तुंद्रा रीजन, टाइगा रीजन, देन देयर इज ग्रासलैंड्स. ग्रासलैंड्स के ब्रैकेट में जो स्टीपेज एंड प्रेरी एरियाज है वो ध्यान रखना. और डेजर्ट रीजन, देन अगेन ग्रासलैंड बट व्हिच इज ऑफ सुदान टाइप. इक्वेटोरियल रीजन जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था, इक्वेटर के नजदीक रहेगा. सो ये 6 रीजन. ओके. ये 6 रीजन है. कौन से? टुंड्रा, टाइगा, ग्रासलैंड्स वो जो स्टीपेज एंड प्रेरी एरियाज वाले, फिर उसके बाद डेजर्ट रीजन, उसके बाद ग्रासलैंड जो है सुदान टाइप वाला, फिर इक्वेटर. ये 6 हो गए. ठीक है, ये ध्यान रखना है. टुंड्रा, टाइगा, ठीक है, टुंड्रा, टाइगा, ग्रासलैंड, स्टेपेस पेरेरेस वाला, फिर हॉट डेजर्ट रीजन, फिर ग्रासलैंड सुदान टाइप वाला, फिर उसके बाद एक आएगा इक्वेटोरियल रीजन. तो बेस्ड ऑन दिस रीजन अलग अलग आपको बाइफर्केशन दी कि भाई लोकेशन एंड एक्सटेंट क्या क्या होंगे इस रीजन की. इस रीजन में क्लाइमेट किस तरह का होगा, देन इस पर्टिकुलर रीजन में नेचुरल वेजिटेशन किस तरह का होगा. अच्छा, अब ये जो फर्स्ट बॉक्स दिया है, तो इसका मतलब ये जो फर्स्ट बॉक्स है ना वो यहाँ का है. सो यू हैव टू रीड दिस 2 पेजेस इन कंटिन्यूएशन. तो टुंड्रा रीजन है तो उसका ये वाला लोकेशन एक्सटेंट, उसका ये वाला क्लाइमेट, फिर उसके नीचे ये वाला है उसका नेचुरल वेजिटेशन, उसका एनिमल लाइफ एंड ह्यूमन लाइफ इन दैट पर्टिकुलर रीजन कैसा है. सो हम लोग बॉक्स वाइज एक एक रीजन पढ़ेंगे. इट विल बी बेटर एंड इजी टू कंपेयर. सबसे पहले तुंद्रा. देखो ये जो मैंने लाइन ली है, तुंद्रा, टाइगा, ग्रासलैंड्स, ये नॉर्थ पोल से आप शुरू करो और नीचे इक्वेटर तक आओ, ये एकदम एग्जैक्ट लाइन से जाएंगे, इसलिए आपको ये लाइन से ही याद रखना है. टुंड्रा, टाइगा, फिर उसके बाद ग्रासलैंड, स्टेपेज एंड प्रेरीज वाला, फिर डेजर्ट रीजन आता है, फिर उसके बाद आपका आएगा क्या, ग्रासलैंड, सुदान टाइप वाला, फिर और नीचे आप आओगे तो इक्वेटर आ जाएगा. तो आपको इक्वेटर. तो ये 65 टू 90 डिग्री पैरेलल, तो नॉर्थ पोल से लगाकर 65 डिग्री तक जो भी एरिया आता है, ये सपोज ये मेरा नॉर्थ पोल है, ये नॉर्थ पोल से लगाकर जो भी एरिया आएगा यहाँ तक, इतना पार्ट आपका क्या आएगा, टुंड्रा रीजन में आएगा. तो यहाँ पे जो टेम्परेचर है समर में 10 डिग्री सेल्सियस, मतलब देखो समर 10 डिग्री क्या होता है, ऑलमोस्ट ठंडा ही होता है. अगर मुंबई में 10 डिग्री हो तो ऐसा अपन बहुत ठंडी बहुत ठंडी. तो वहाँ पे देखो ये एवरेज टेम्परेचर रहता है, पूरे 12 महीने ऑलमोस्ट यही टेम्परेचर है. बट विंटर का टेम्परेचर आप लोग देखो -20 to 30 डिग्री है दोस्तों. मतलब बर्फ रहती है पूरे साल भर वहाँ. ठीक है, कोई चांस नहीं कि बर्फ ना हो. ओके. एनुअल रेनफॉल कितनी है, 25 to 300 mm. और डेफिनेटली यहाँ पे क्या रहेगा, वेरी कोल्ड क्लाइमेट. ओके. तो ये होता कहाँ कहाँ, ये होता है ग्रीनलैंड में, नॉर्दर्न कनाडा में, नॉर्दर्न यूरोप में, नॉर्दर्न एशिया में. तो जितना भी मेरा नॉर्दर्न पार्ट है वहाँ ये चीज हमको मिलेगी. तो वहाँ पे वेजिटेशन कैसी, वहाँ पे एकदम शॉर्ट लीव वेजिटेबल. देखो जहाँ ज्यादा स्नो होगी वहाँ डेफिनेटली वेजिटेबल इतना ग्रो नहीं हो सकता, फॉरेस्ट इतना ग्रो नहीं हो सकता, इसलिए वहाँ पे शॉर्ट ग्रास होती है, स्मॉल श्रब्स होते हैं, छोटे छोटे फ्लावर्स होते हैं, लाइशंस होते हैं, मॉस होता है. ठीक है. वहाँ पे एनिमल लाइफ की कैरिबियो मिलेगा आपको, रेनडियर मिलेगा. तो पोलार बेयर्स तो डेफिनेटली आपने बहुत बार सुना देखा होगा, फॉक्सेस देखा होगा, वॉलरस देखा होगा, सील भी आपने डेफिनेटली बहुत बार देखा होगा. एनिमल्स विद सॉफ्ट थिक फर. थिक फर क्यों रहती है, अगर बाल, फर मतलब बाल रहते हैं उनकी, चमड़ी पे बहुत ज्यादा बाल रहेंगे, तो अगर चमड़ी पे बहुत ज्यादा बाल रहेंगे तो क्या होगा, आपको इतनी ठंडी नहीं लगेगी. ह्यूमन लाइफ किस पे डिपेंड करती है, वो हंटिंग और फिशरीज करती है. क्योंकि देखिए वहाँ पे और कुछ मिलेगा भी नहीं, आप एग्रीकल्चर नहीं कर सकते क्योंकि वहाँ पे स्नो है पूरा. इस वजह से आपको हंटिंग करना पड़ता है. जो एनिमल वहाँ दिखे, ये पोलर बेयर वगैरह का एनिमल भी ठीक फर इन लोग का निकाल के बेचते हैं. फिर फिशरीज बहुत सारी मिलती है तो वहाँ फिशरीज बेच देते हैं. फिर लोग इग्लू का इस्तेमाल करते हैं, पता है, एस्किमो पीपल, ये इग्लू में रहने वाले को एस्किमो. ये टफ लाइफ होती है, बहुत कम लोग रहते हैं वहाँ पे, इतनी पॉपुलेशन है भी नहीं वहाँ पे. पॉपुलेशन बहुत स्पार्स है, स्पार्स मतलब कम, लेस. ओके. तो ये समझ गए आप, बहुत ठंडी है इसलिए कोई ज्यादा रह नहीं पाता, एग्रीकल्चर भी इतना नहीं होता, और लोग जो है हंटिंग पे डिपेंड करते हैं. अब उससे थोड़ा नीचे आता है जो है टाइगर रीजन. ये बिटवीन 55 to 65 डिग्री नॉर्थ है. तो इसमें कंट्रीज आती है अलास्का. अलास्का इज नॉट अ कंट्री, अलास्का इज अ पार्ट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. बट ये कनाडा के बाजू वाला है, ये है अलास्का. ओके. तो ये पूरा अटलांटिक कोस्ट आ जाता है, ये पूरा अटलांटिक कोस्ट. फिर उसके बाद ये आता है पार्ट्स ऑफ यूरेशिया. ये जो पूरा है ये यूरेशिया, एशिया प्लस यूरोप, उसको यूरेशिया में होता है. ओके. तो इसमें समर टेम्परेचर थोड़ा ठीक हो जाता है, 15 to 20 डिग्री. बट विंटर टेम्परेचर अभी भी 0 डिग्री, मतलब विंटर में यहाँ पे बर्फ जम जाती है अलास्का वगैरह में. बट नॉर्मल डेज में आप रह सकते हो, 15 to 20 डिग्री है. रेनफॉल भी एकदम ठीक है, ज्यादा नहीं है, 300 to 500 mm है.
बट रेनफॉल समर में होती है और स्नोफॉल कहाँ होती है, विंटर में। डेफिनेटली इट्स कॉमन सेंस वाला। तो यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे कैसे वेजिटेशन है, कॉनिफरस। कॉनिफरस फॉरेस्ट मतलब एकदम जो तीखे तीखे रहते हैं ना एकदम, उसको बोलते हैं कॉनिफरस फॉरेस्ट। फिर लीव्स वहाँ की एकदम नैरो होती है बट पॉइंटेड होती है। ब्रांचेस जो है वो ऑलमोस्ट लीनिंग टुवर्ड्स द ग्राउंड होती है। ब्रांचेस ट्री के तो नीचे नीचे आती जाती है। ओके, यहाँ पे वुड इसका एकदम लाइट होता है, एकदम जल्दी कट जाएगा इसका वुड। यहाँ का जो झाड़ है आप एकदम थोड़ा सा काटने जाओगे तो इसका जल्दी कट जाएगा, बट दूसरे का झाड़ इतना जल्दी कटेगा। इसलिए इसका जो लकड़ी है बहुत इस्तेमाल किया जाता है, बहुत काटा जाता है। पाइन, रेडवुड एक्सेट्रा, इसके एकदम पतले पतले झाड़ होते हैं। ओके, तो यहाँ पे इसमें भी सेम सॉफ्ट एंड थिक फर तो अभी भी होती है क्योंकि अभी भी ठंडी है, स्नोफॉल हो रही है। बट यहाँ पे थोड़े बहुत एक्स्ट्रा जानवर आते हैं, जो एल्क्स है, अर्माइन है, बीवर्स है, सिल्वर फॉक्स, मिंक्स, बेयर्स एक्सेट्रा। ये सब के आप गूगल करके इमेजेस देख सकते हो, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट कौन सा एनिमल है आपको नाम याद है। यहाँ पे डेफिनेटली पॉपुलेशन अभी भी कम ही है क्योंकि अभी भी स्नोफॉल होती है 4-5 महीना, तो इसमें कोई काम नहीं हो सकता। लुम्बरिंग एंड हंटिंग। लुम्बरिंग मतलब लकड़ी वगैरह काटना, लुम्बरिंग मतलब झाड़ का जो लकड़ी काटते हो, लंबर्स बोलते हैं। और थोड़ा सा एक्टिविटी एग्रीकल्चर का हो जाता है क्योंकि सनलाइट आती है थोड़ा टाइम। ओके, और इतना भी कुछ ना हो, पूरे 12 महीने नहीं रहता है। अब ये जो ग्रासलैंड है ये स्टीपेस एंड प्रेरियस। अब ये जो ग्रासलैंड है देखो कहाँ कहाँ मिलती है। तो स्टीपेस आपको यूरेशिया में मिलेगी, वेल्ड्स आपको साउथ अफ्रीका में मिलेगी, ये जो दिख रहा है ये वेल्ड्स साउथ अफ्रीका। उसके बाद पैम्पस साउथ अमेरिका, ये जो दिख रहा है ये पैम्पस साउथ अमेरिका है। उसके बाद प्रेरिस नॉर्थ अमेरिका, ये जो दिख रहा है ये प्रेरिस है। तो ये स्टेपिस यूरेशिया से आया और प्रेरिस कहाँ से आया, यूएसए से। तो प्रेरिस स्टेपिस इन पैम्पस में। फिर ऑस्ट्रेलिया में क्या मिलेगा, डाउन्स। तो ये ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे ये रहा, तो यहाँ पे आपको डाउन्स मिल जाएगा। तो मैप पे ध्यान देते रहो और कहाँ है आपको ढूंढना पड़ेगा, एटलस में आप लोग ढूंढ सकते हैं। इसमें समर टेम्परेचर डेफिनेटली अच्छा है, 27 डिग्री सेल्सियस वी कैन स्टे। विंटर अभी भी 0 डिग्री में जाता है, कोई प्रॉब्लम। इन एनुअल टेम्परेचर अच्छी हो रहा है, रेनफॉल 600 to 400 mm हो रहा है, और मोस्टली समर्स के दिन रेनफॉल। ओके, तो इसमें देखो अभी इसमें क्या एक्सटेंसिव ग्रास ग्रास मतलब यहाँ पे से थोड़ी ग्रीनरी दिखना स्टार्ट हो जाती है। शॉर्ट ग्रास ग्रुप्स में, लम्स में, मतलब ग्रुप में एक साथ तो शॉर्ट ग्रास दिखती है। ग्रास गेट ड्राइड अप इन विंटर। ग्रास जो है 8 महीने तो अच्छी रहती है, बट 4 महीने जब विंटर आता है वो खराब हो जाता है। फिर एल्डर है, पॉपुलर ट्रीज आर फॉर्म। यहाँ पे एक वाइल्ड लाइफ इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। डियर मिलता है, हॉर्सेस भी मिलना स्टार्ट हो जाता है, डॉग्स, वुल्व्स, बाइसन्स, रैबिट्स, हॉर्स, कैंगरूज, डेंगूज एक्सेट्रा आपको सब मिलना स्टार्ट होता है। डोमेस्टिकेटेड एनिमल में शीप, गोट, कैटल, हॉर्स सब चालू हो जाते हैं। ओके, ऊपर आपको ये सब नहीं मिला था, तो ये सब इंपॉर्टेंट है कि भाई नए नए आ रहे हैं। फिर रियरिंग एनिमल, क्योंकि अभी एनिमल है तो गाय भैंस चराना ये उन लोग का काम हो गया। गाय भैंस को पालेंगे, गाय भैंस को चराएंगे, तो इससे क्या मिलेगा, दूध मिलेगा, चीज मिलेगी। अर्लियर पीपल हैड अ नोमैडिक। नोमैडिक मतलब एकदम ट्रेडिशनल लाइफ, पुरानी लाइफ, बट लिव्ड इन टेंट्स। वो झोपड़ियों में रहे करते थे, बट अभी तो झोपड़ी नहीं, अभी तो प्रॉपर एक थोड़ा गांव बना लेते हैं। किर्गिज पीपल आर नो मोर नोमैडिक। जो पहले थे नो मोर नोमैडिक है, नाउ स्टे इन वेल बिल्ट हाउस। मैंने बोला था पहले ऐसा था। लोग क्या करते हैं अभी, वीट लगाते हैं, ग्रो वीट, गेहूं। ओके चलो, हॉट डेजर्ट रीजन। हॉट डेजर्ट, देखो डेजर्ट हमेशा हॉट ही रहेगा, कुछ कुछ कोल्ड डेजर्ट भी होते हैं। बट जनरली जो डेजर्ट का एक सिनोनिम बोला है कि ये भाई रेगिस्तान इलाका है जहाँ पे बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है और रात को बहुत ज्यादा ठंडी, तो उसको मैं बोलूंगा हॉट डेजर्ट रीजन। अब आप ये देखना कि हॉट डेजर्ट रीजन ये वेस्ट में है, ये वेस्ट में है, ये भी पूरा वेस्ट, पूरा कोस्ट का, ये भी वेस्ट कोस्ट है, ये भी इसका वेस्ट कोस्ट है। इंडिया का ये जो थार डेजर्ट है ये भी क्या है, वेस्ट कोस्ट है। तो जनरली ये सब वेस्ट में ही आता है क्योंकि वहाँ पे रेन शेडो एरिया है, मतलब वहां तक बारिश पहुंचती ही नहीं है, इसलिए वो क्या हो जाता है अपना, डेजर्ट में कन्वर्ट हो जाता है। डेजर्ट इज व्हाट, जहाँ पे बारिश ना हो। रेगिस्तान बारिश होती है क्या, नहीं होती। तो चलो ओके, तो ये कहाँ मिलेगा, 20 डिग्री तो 30 डिग्री आपको नॉर्थ एंड साउथ में मिल जाएगा। दिख रहा है ये नॉर्थ में मिलता है, साउथ में मिल रहा है। नॉर्थ ये नॉर्थ अमेरिका, साउथ ऑस्ट्रेलिया। तो कहाँ कहाँ है डिफरेंट टाइप्स ऑफ। सहारा डेजर्ट जो नॉर्थ अफ्रीका, ये जो आपने देखा ये सहारा डेजर्ट है। ये कोलोराडो जो नॉर्थ अमेरिका में, ये कोलोराडो दिखता है। ये एटाकामा डेजर्ट बहुत ही फेमस डेजर्ट है, ये साउथ अमेरिका में। ये कालाहारी, ये यहाँ पे भी, ये भी फेमस है साउथ अफ्रीका में। और ये अपने इंडिया का जो था। ओके, यहाँ पे मीन टेम्परेचर बहुत गर्मी पड़ रही है, 45 डिग्री, बहुत ज्यादा गर्म होता है दोस्त। फिर मीन विंटर टेम्परेचर 20-25 शूटिंग है, बहुत रह सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ट्रेमेंडस हीट रहती है, मतलब बहुत ज्यादा गर्मी, और रेनफॉल भी बहुत कम, तो बहुत तकलीफ है यहाँ जी, ठीक है। और शाम को तो आप पूछो ही मत, कंबल पहन के निकलना। ओके चलो, ग्रासलैंड कैसी, स्वीडन टाइप है। स्वीडन टाइप मतलब यहाँ पे एक स्वीडन टाइप की कंट्री आती है, इसलिए इसका नाम पड़ गया स्वीडन। स्वीडन टाइप मतलब स्वीडन नाम की एक कंट्री है, इसलिए उसको स्वीडन टाइप बोला है, सिंपल। ओके, ये 5 डिग्री टू 20 डिग्री नॉर्थ, मतलब आप देखो ये इक्वेटर के नजदीक आ गया, 5 डिग्री से ही मिलना स्टार्ट हो, ठीक है। अब ये सवाना जो है अफ्रीका, मतलब ये अफ्रीका में जितना भी, उसको मैं सवाना बोलूंगा, जितने भी ग्रासलैंड है, ठीक है। बट ऑस्ट्रेलिया में जो आएगी उसमें क्वींसलैंड बोलूंगा। पार्कलैंड अफ्रीका, लेनन
लेनोस एंड कैपोस साउथ अमेरिका और अदर ग्रासलैंड्स। ठीक है, ग्रासलैंड्स के अलग अलग एरिया में अलग अलग नाम है, आपको याद रखना है। ये सामाना अफ्रीका में मिलता है, क्वींसलैंड ऑस्ट्रेलिया वगैरह। समर टेम्परेचर ठीक ठाक है, ज्यादा भी कोई गर्मी नहीं है, 35 डिग्री एटलीस्ट। हॉट डेजर्ट से तो बेटर है, 35 डिग्री नॉर्मल है। मुंबई में भी 28 से 35 डिग्री का एवरेज टेम्परेचर रहता है। विंटर टेम्परेचर अराउंड 24 डिग्री, थोड़ी सी विंटर में अभी गर्मी आना स्टार्ट हो गई है, 24 हो गया है। रेनफॉल भी ठीक ठाक हो रही है, 2,000 mm तक भी हो सकती है। बट यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि समर में बहुत ही ज्यादा गर्मी होती है और विंटर में ठीक ठाक वार्म एंड ड्राई वेदर रहता है। ओके, अभी यहाँ पे भी इसको देख लेते हैं। यहाँ पे क्या होगा, टॉल एंड थिक ग्रास आएगी। हाइट 6 मीटर के ग्रास भी उग सकते हैं, एलिफेंट ग्रास जिसको बहुत बड़ी बड़ी, एलिफेंट से बड़ा है ना, इसलिए इसको एलिफेंट ग्रास। ट्रीज रेयर है बट थोड़ा थोड़ा मिल जाता है। अम्ब्रेला लाइक कैनोपी, अम्ब्रेला लाइक कैनोपी मतलब जो झाड़ का जो ऊपर का जो हिस्सा रहता है ना, उसको मैं कैनोपी बोलता हूँ, अम्ब्रेला लाइक। एकदम भी घना जंगल नहीं है, थोड़ा सा कैनोपी लाइक बन जाता है। यहाँ पे हर्बीवोरस एनिमल मिल जाए। सी देखो, अभी ये 6 मीटर की ग्रास हुई है तो हर्बीवोरस एनिमल आएगी, क्योंकि हर्बीवोरस एनिमल ग्रास खाएंगे। ठीक है, नेचर हैज गिफ्टेड देम विद स्पीडी लेग्स, क्योंकि ग्रास भले दूर दूर रहे तो भाग भाग के भी क्या कर सकता है, खा सकता है। स्किन, उसमें कलरफुल स्पॉट्स है, जैसे जेब्रा को देखो आप, व्हाइट एंड ब्लैक है। आप लायन को देख लो, ब्राउन एंड ब्लैक होता है, येलो एंड ब्लैक होता है, अलग अलग टाइप के होते हैं। लायन, चीता, हाइना, वुल, जेब्रा, जिराफ, एलिफेंट, राइनो, वाइल्ड डॉग्स, बफेलो, कंगरू, ईमू एटसेट्रा, ये सब आप देख। यहाँ पे हाउस क्या है, सिंपल है। तो कभी कभी मड वॉल्स पुराने जमाने में होते थे, आजकल तो खैर मड वॉल्स मैं तो नहीं देखता हूँ किधर होंगे। गाँव में, गाँव में पहले मड वॉल्स बनते थे, अभी गाँव में भी ठीक ठाक बनते हैं। जनरली यहाँ पे विंडोज इतनी नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पे गर्मी स्टार्ट हो जाती है, तो विंडोज से गर्मी हवा और बाहर अंदर आएगी। यहाँ पे शॉर्ट इन हाइट होता है, डोम शेप हर्ट्स होती है, कॉल्ड kraals। हर्ट्स वगैरह गांव साइड में आपको दिख जाएगा। हंटिंग एंड रियरिंग आर मेन ऑक्यूपेशंस। अभी देखो, हर्बीवर्स एनिमल है, इनका हंटिंग में कर सकता हूँ डेफिनेटली, कोई प्रॉब्लम नहीं। हर्बीवर्स को हम इंसान को तो नहीं खाएंगे, तो आराम से आप कर सकते हैं। एग्जाम्पल्स क्या है, ट्राइब्स के जुलू, हौसा एंड मसाई, ये सब आपको ट्राइब्स मिल जाएंगे। ये लास्ट इक्वेटोरियल रीजन जो 5 डिग्री नॉर्थ साउथ में मिल जाएगा। तो ये कंट्रीज कौन सी, मलेशिया, इंडोनेशिया, सिंगापुर, गिनी, कांगो बेसिन, अमेज़न बेसिन। समर टेम्परेचर अराउंड 30 डिग्री सेल्सियस। ओके, समर टेम्परेचर गर्मी स्टार्ट हो गए। एनुअल रेनफॉल 25 से 3000 mm मिल जाएगा आपको। बिकॉज ऑफ द हीट एंड हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट रहता है, वेजिटल इंटर डीकम्पोज। एक सेकंड, हाँ रुकना जरा, थोड़ा रुकना, हाँ जरा, एक सेकंड। सॉरी, वेलकम बैक। एंड इसमें भी अपन देख लेते हैं कौन कौन कैसे है। इसमें देखो, अभी इक्वेटर के पास आ गए तो यहाँ पे एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलेगा, जो पूरे 12 महीने आपको ग्रीनरी दिखेगी वहाँ पे। इसलिए अगर ग्रीनरी है तो आपको डेफिनेटली ट्रीज और बुशेस की वैरायटी मिलेगी। स्वाम्पी लैंड मतलब ऐसे लैंड जहाँ पे अ, बारिश भी बहुत हो रही है, और वो दलदल टाइप, अगर इसको मैं बोलूँ प्रॉपर हिंदी में तो मार्शी लैंड, मतलब मैं लैंड विद अ लॉट ऑफ वाटर इन इट, तो उसको मैं दलदल टाइप बोल सकता हूँ। उसमें टॉल भी होते हैं, हार्ड वुडेड ट्रीज होते हैं, इसको काटना मुश्किल है। ठीक है, एग्जांपल्स क्या है, मेहगोनी, ग्रीन हार्ट, रोजवुड, एबोनी एटसेट्रा, ये सब आपको याद रखना पड़ेगा दोस्तों। ओके, यहाँ पे डेफिनेटली ग्रेट वैरायटी मिलेगी आपको, एनिमल्स में, प्लांट्स में, फ्लोरा फौना। इक्वेटर द बेस्ट रहता है। इक्वेटर में अगर आप, इक्वेटर अगर आपको फ्लोरा एंड फौना देखना है तो इक्वेटर रीजन में आप कहीं भी चले जाओ, आपको फ्लोरा फौना बेस्ट दिखेगा। मार्शी लैंड, क्रोकोडाइल, एनाकोंडा और हिप्पो। एनाकोंडा सब याद करते होंगे ना, एनाकोंडा मूवी है, देखना। एनिमल बर्ड्स एग्जांपल्स क्या है, चिंपैंजी है, गोरिल्ला है, हॉर्नबिल्स है, पॉइजनस इंसेक्ट्स सच एज सी फ्लाई। ओके, ह्यूमन सेटलमेंट्स आर फ्यू। पता नहीं ये क्यों लिखा है, क्योंकि ह्यूमन सेटलमेंट्स इक्वेटर के आसपास बहुत है। खैर, इक्वेटर के आसपास गर्मी पड़ती है, बट इक्वेटर के आसपास है ह्यूमन सेटलमेंट्स। देयर इज इंडोनेशिया, देयर इज मलेशिया, देयर इज सिंगापुर, वहां से बहुत लोग रहते हैं। पॉपुलेशन इज मोस्टली क्या है, ट्राइबल होती है, बट अभी ट्राइबल खैर तो है भी, और उससे भी आगे है, बट मोस्टली ट्राइबल आप लिख सकते हो। हाउसेज आर बिल्ट ऑन ट्रीज। हाउसेज कहाँ पे रहते थे पहले के जमाने, ट्रीज पे। अभी कोई नहीं करता, कोई देखा क्या ट्रीज पे रहते। ट्राइब्स लाइक पिग्मीज, अफ्रीका, बोरो इंडियंस एंड द सीमांग एटसेट्रा, ये अलग अलग ट्राइब के नाम है, वो अलग अलग ट्राइब के नाम। सी, ये जो पूरा टेबल है, यू हैव टू डेफिनेटली रिमेंबर, इसमें बहुत फैक्ट्स है, डेटा है, स्टैटिस्टिक्स है, कौन से एरिया में आ रहे हैं, क्या टेम्परेचर है, कितना रेनफॉल है, तो ये प्रॉपर एकदम याद करना पड़ेगा आपको। और इसके अलावा ये चैप्टर में कुछ भी नहीं है, ये इंपॉर्टेंट था पूरा याद करना है। ठीक है, तो ये 6 चैप्टर हम, ये 6 टाइप पढ़ लिए। इनके अलावा भी देयर आर फ्यू अदर टाइप्स, जिसका नाम है मॉनसून रीजन, मेडिटेरियन रीजन एंड वेस्ट यूरोपियन। ठीक है,
Beside the region mentioned above, there are some regions which stand out due to the local conditions. They are monsoon, Mediterranean, and the West European regions. While the monsoon and the West European regions stand out because of the specific wind blowing there. ठीक है, monsoon and West European के wind की वजह से ये अलग होता है. But Mediterranean जो है is known for its rainfall in winters. Come on, Mediterranean region में बारिश ठंडी के वक्त होती है. Okay. तो आप मेडिटेरेनियन मतलब आप इटली घूमने जाएंगे या फिर फ्रांस स्पेन वगैरह वो सब जो एरिया में आप जाएंगे ना घूमने यूरोप के एरिया में, तो आप ठंडी में मत जाना, ठंडी में बारिश होती है. ठीक है, मानसून एरियाज मेडिटेरियन रीजन एंड वेस्ट यूरोप. लोकेशन एंड एरियाज देख लेते हैं. मानसून रीजन मतलब 10 डिग्री एंड 30 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ पैरेलल्स, मतलब 10 डिग्री टू 30 डिग्री नॉर्थ में पिछले जब 10 डिग्री टू साउथ में पिछले जब जो इंडियन सबकॉन्टिनेंट भी मानसून रीजन में है. इंडिया में इतनी बारिश होती है. फिलीपींस है, वेस्ट इंडीज है, नॉर्थ ऑस्ट्रेलिया, ईस्ट अफ्रीका, सेंट्रल अमेरिका, सी स्टैंड्स फॉर सेंट्रल. मेडिटेरियन रीजन. अच्छा, मानसून रीजन का दूसरा भी पढ़ लेते हैं. क्लाइमेट क्या है यहाँ पे? समर टेंपरेचर 27 टू 30 डिग्री डेफिनेटली. अपने मुंबई में कितना टेंपरेचर है? आप ये टेंपरेचर ऑब्जर्व करोगे 27 के आसपास से 30 डिग्री का टेंपरेचर. विंटर भी डेफिनेटली यही टेंपरेचर रहता है 52. रेनफॉल भी ठीक ठाक बहुत अच्छी हो जाती है 250 कम भी हो सकती है और बहुत ज्यादा भी हो सकती है. एरिया के स्पेसिफिक रीजन में ही सीजन में ही रेनफॉल होता है, दैट इज साउथ वेस्ट मानसून विंड्स. रेनफॉल इज हाईली वेरिएबल. कभी बहुत, मुंबई को देख लो, कभी बहुत ज्यादा हो जाती है, कभी ज्यादा होती ही नहीं. फिर उसके बाद आते हैं वेजिटेशन में. यहाँ पे आपको सेवर एवरग्रीन देखा होगा, आसपास के झाड़ मतलब साल के कुछ 2-3 महीने ठीक ठाक रहते हैं, उसकी लीव्स पूरी चली जाती है, बट जैसी बारिश आती है वैसी लीव्स पूरी प्रॉपर रह जाती है. बस ये इसको सेमी एवर मतलब सेमी एवर मतलब कुछ समय के लिए ग्रीन रहेंगी, कुछ समय के लिए ग्रीन नहीं रहते. सेमी, आधा आधा ग्रीन आधा ग्रीन नहीं. और डेसिडियस, डेसिडियस मतलब उन लोग अपना लीफ शेड कर देते हैं, लीफ फेंक देते हैं क्योंकि उन लोगों को पानी की कमी होती है. Vegetation depends on the distribution of rainfall. तो banyan tree, maple tree, teak tree, sal tree, shishan tree, sandalwood, ये सब अलग अलग टाइप के आप पढ़ लेना भाई. फिर आगे बढ़ते हैं. इसमें एनिमल सच एज टाइगर, लायन, लेपर्ड, चीता सुना होगा ना. आर्य कॉलोनी में चीता आ गया, आर्य कॉलोनी में लायन आ गया, आर्य कॉलोनी में लेपर्ड आ गया. तो ये सब बुल्स, गोर, मंकीज, स्नेक्स, पीकॉक, कुकूज. पीकॉक तो खैर इतने देखने नहीं मिलते, लेकिन स्नेक्स कभी कभी देखने मिल जाते हैं. मंकी देख सकते हो आप, कुकूज देख सकते हो. फिर कैटल, गोट, हॉर्सेस, तो ये तो आपको सब जगह मिल ही जाएंगे. फिर लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल हेमलेट्स. हेमलेट्स मतलब होता है एक छोटा सा गांव, विलेज, और जो एक साथ थोड़ा ग्रुप में रहता है वो आदिवासी टाइप, जिसको मैं हेमलेट बोलता हूँ. ओके, तो डिफरेंस इन डाइट एंड कॉस्ट्यूम डेफिनेटली रहेगा, रहता है ये. पॉपुलेशन कहीं ना कहीं प्राइमरी ऑक्यूपेशन में रहती है. प्राइमरी ऑक्यूपेशन से मतलब मेरा ये है कि फिशिंग, एग्रीकल्चर, माइनिंग वगैरह वो सब. बट मेन एग्रीकल्चर क्या है, मेन ऑक्यूपेशन क्या है, इज दी एग्रीकल्चर. अब मेडिटेरियन पे आ जाता है. पहले वेस्ट यूरोप कर लेते हैं क्योंकि ये दोनों सेम ही ऑलमोस्ट. यहाँ पे बारिश होती है 45 डिग्री टू 65 डिग्री नॉर्थ साउथ पैरेलल है. नॉर्वे, डेनमार्क, आयरलैंड, ब्रिटिश कोलंबिया, साउथ चिले, न्यूजीलैंड एक्सेट्रा. मीन समर टेंपरेचर कितना है? 20 डिग्री. बट विंटर टेंपरेचर अराउंड 5 डिग्री, तो थोड़ा कम. रेनफॉल भी कितना है? 2500 mm. यहाँ पे भी 2500. तो इनका भी हाईएस्ट, इनका भी हाईएस्ट. रेनफॉल साइक्लोन के फॉर्म में होते हैं. मैंने बताया था साइक्लोन इज एसोसिएटेड विद हैवी रेन. हैवी रेन होगा तो साइक्लोन से डेफिनेटली रेनफॉल आएगी. रेन्स थ्रू आउट द ईयर. और क्लाइमेट इज व्हाट? माइल्ड. क्लाइमेट माइल्ड ही रहेगा ना डेफिनेटली. 20 डिग्री है डेफिनेटली बहुत अच्छा क्लाइमेट, आप रह सकते हो. ग्रीन ग्रासेस ऑल द ईयर. ग्रीन ग्रासेस यहाँ पे देखो, ये सेमी एवरग्रीन था, बट ये ग्रीन ग्रासेस ऑल द ईयर. ट्री शेड द लीव्स इन विंटर. विंटर में वो अपना लीव शेड कर देते हैं क्योंकि पानी की कमी हो जाती है. विंटर में तो बारिश हो नहीं रही, मेडिटेरियन तो है नहीं. कॉनिफरस ट्रीज एंड शॉर्ट ग्रासेस. फिर ओक है, बीच है, मैपल है, एल्म है, पाइन है, स्प्रूस है, पॉपुलर है, एक्सेट्रा. Because of animal husbandry, domesticated animals in large numbers. Wild animals include wolves, fox, bears, etc. इंडस्ट्रीज एंड एंथुसियास्टिक पीपल. यहाँ पे इंडस्ट्रीज वगैरह बहुत ज्यादा होती है. आप देखो यूनाइटेड किंगडम हुआ, देन ये हुआ अपना नॉर्वे हुआ, आयरलैंड हुआ, साउथ चिले हुआ, न्यूजीलैंड. और इंडस्ट्री सर्विस सेक्टर बहुत है यहाँ पे. इतना कोई एग्रीकल्चर नहीं है. have been mainly sailors and explorers. sailors क्यों? sailors मतलब Popeye the sailor man. तो इसका मतलब क्या है? जो शिप का कैप्टन होता है, जहाज जो चला रहा है, उसको मैं सेलर्स. तो ये देखो, आप एक चीज नोटिस करना, ये जितना भी कंट्री का नाम लिया था वहां पे, वो कोस्टल एरिया के पास, मतलब उनके आसपास क्या है? पानी. फिर वुलन क्लोथिंग उन लोग यूज करते हैं. डेफिनेटली 20 डिग्री है, तो 20 डिग्री अगर इंडिया में हो जाए तो हम भी स्वेटर निकालते हैं. have achieved progress in secondary and tertiary sector. मैंने बताया यहाँ पे प्राइमरी में कोई नहीं है, यहाँ पे सब सेकेंडरी या फिर टर्शियरी. सेकेंडरी मतलब इंडस्ट्री वगैरह लगा दिया, टर्शियरी मतलब सर्विस वगैरह. अब मेडिटेरेनियन रीजन पे आता है, ये थोड़ा अलग है.
ये 30 डिग्री टू 40 डिग्री नॉर्थ साउथ दोनों में मिल जाएगा इन बोलते हैं डेफिनेटली। पोर्टुगल, स्पेन, बल्गेरिया, टर्की, कैलिफोर्निया, सेंट्रल चिली, साउथ वेस्ट एंड द नॉर्थ ईस्ट ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो साउथ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट दोनों ऑस्ट्रेलिया का आ ही जाता है इसमें। इसमें देखो ड्राई समर होता है, समर एकदम सूखा हुआ होता है, गर्मी नहीं लगेगी बट वहाँ पे मॉइस्चर नहीं, एकदम सूखा सूखा समर। ओके, बट रेनफॉल कहाँ होगी, विंटर। ये एकदम इसका यूनिक चीज, ड्राई समर एंड रेनफॉल। समर टेम्परेचर 21 डिग्री टू 27 डिग्री। जो 27 डिग्री, बट वहाँ पे इतनी गर्मी नहीं लगेगी, ह्यूमिडनेस नहीं है। विंटर टेम्परेचर 20 डिग्री। एनुअल रेनफॉल कितनी है, 500 टू 1000। यहाँ पे देखो 2500 नहीं, 1000 मतलब कम। इट रेन्स इन विंटर, यहाँ पे रेनफॉल इन विंटर्स। ओके, यहाँ पे थिक स्मॉल ऑयली लीव्स है, ऑयली लीव्स है, ऑयली लीव्स ना, लीव्स मतलब ऑयल, ऑयल आपको फील हो रहा है जितना जितना बैग्स टाइप लगा होगा। ठीक, बार्क, इनकी जो ब्रांचेस है, बार्क है, बहुत जाड़ी होगी। तो ऑलिव है, ओक है, चेस्टनट है। देखो ऑलिव किसी और जगह नहीं है, यहाँ पे मिल रहा है क्या आपको, यहाँ पे मिल रहा है क्या आपको। तो हर एक रीजन की अपने अपनी कुछ यूनिकनेस है, इस वजह से ये टेबल लर्न करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं आपको सब कुछ सेम लिखा हुआ है, एक आध पढ़ लिया तो नहीं पढ़ेगा चलेगा। हर एक यूनिक चीज है। ऑलिव यहाँ पे मिल रहा है आपको, ओक, चेस्टनट, पहले ओक यहाँ पे मिल रहा है, बट ये वाले ओक और ये वाले ओक में थोड़ा फर्क है। ये वाला ओक जो होगा वो फर्क होगा, ये वाला जो वो अलग थोड़ा सा, पहले वो ओक की स्पीशी हो। ग्रास इन लोअर कॉन्फिगरेशंस। कॉनिफरस फॉरेस्ट, माउंटेन कॉनिफरस मतलब ये जैसे कोन टाइप जो होता है, कोन टाइप देखो क्रिसमस ट्री लगा था वो कोन टाइप लगा था, तो वैसे कॉनिफरस फॉरेस्ट है। क्रिसमस भी कौन से यही जगह पे मनाया जाता है जहाँ पे मेडिटेरेनियन ज्यादा क्रिसमस नहीं मनाया, स्पेन, फ्रांस, ये सब सोलर क्रिश्चियन क्रिश्चियन डोमिनेटेड कंट्री, इसलिए यहाँ पे क्रिसमस ज्यादा मनाया, इसलिए वहाँ पे कॉनिफरस ट्रीज लिंक करो ऐसे जो एक्स्ट्रा थोड़ा और सोचो। एनिमल हस्बेंड्री में गोट, शीप, काऊ, मस, आपको और यहाँ पे डेयरी प्रोडक्ट बहुत सही मिल जाएंगे आपको। इटली में जाएंगे तो आपको 10 टाइप की चीज मिल जाएगी, चीज क्योंकि वो डेयरी प्रोडक्ट इतना अच्छा है। Okay, तो सीट ऑफ ग्रीक एंड रोमन सिविलाइजेशन, यहाँ से ग्रीक सिविलाइजेशन, रोमन सिविलाइजेशन दोनों स्टार्ट हुआ था, जो पुराने जैसे अपना इंडस वैली सिविलाइजेशन इंडिया का था, मतलब इन शॉर्ट वैसे ही सेम ग्रीक और रोमन में भी सिविलाइजेशन हुए थे जो यहाँ से स्टार्ट हुआ। मेन ऑक्यूपेशन क्या है यहाँ पे, एग्रीकल्चर। मेन ऑक्यूपेशन क्या है, एग्रीकल्चर। डेफिनेटली यहाँ पे डेयरी प्रोडक्ट्स अच्छे उगते हैं, तो डेफिनेटली हार्बिवोर्स कहाँ से, हार्बिवोर्स किस पे जिंदा होंगे, प्लांट्स में, तो प्लांट्स होना ही चाहिए मोस्टली, फ्रूट एंड फ्लावर कल्टीवेशन। या फिर हॉर्टिकल्चर, फ्लावर कल्टीवेशन, एग्रीकल्चर में तो गेहूं चावल ये सब नहीं, आपके एप्पल वगैरह ये सब ज्यादा होगा। मीट एंड मीट प्रोडक्ट्स फ्रॉम द स्टेपल टाइम, और कलरफुल कॉस्ट्यूम्स थे। ओके चलो, अभी ये सब आपको क्वेश्चन है कि भाई अलग अलग टाइप के रीजन है पूरे वर्ल्ड में, तो ये अलग अलग देखो क्वेश्चन, जैसे ये इक्वेटोरियल रीजन मतलब ये ग्रीन साइन, तो ये ग्रीन साइन जिधर जिधर इक्वेटर आएगा तो ये साउथ अमेरिका, ये अफ्रीका, ये एशिया। ओके, फिर ये सपोज एक और ले लेते हैं हम लोग आइस कैप, जितनी भी आइस कैप है प्रोवाइड ये आइस कैप। ओके, फिर एंटार्क्टिका देखो ये छोटा सा आइस कैप, यहाँ पे हिमालय वगैरह पे आइस कैप होता है, ये ऊपर ऊपर जितने भी ये सब जगह क्या मिलेंगे आपको, आइस कैप्स। तो बस ये दिस वाज द होल चैप्टर ऑल अबाउट। 6 पहले पढ़े, बाद में 3 और अलग से पढ़े, मानसून, मेडिटेरियन, और फिर एक और था वो कौन सा था, मानसून, मेडिटेरियन और वेस्ट यूरोप, वेस्ट यूरोप। यस, चलो अभी ये इंपॉर्टेंट लाइन पढ़ लेते हैं। एज वन ट्रेवल्स फ्रॉम द इक्वेटर टू द पोल्स, अगर मैं इक्वेटर से पोल्स पे जाता तो स्पेक्ट्रम ऑफ बायोडायवर्सिटी नैरोज डाउन। देखो इसका ये लाइन का जो मतलब है कि इक्वेटर से अगर मैं पोल की तरफ जाता हूँ तो इक्वेटर की जो बायोडायवर्सिटी थी या फिर जो है, वो सेम बायोडायवर्सिटी आप जितना ऊपर जाते जाएंगे आपको नहीं मिलेगी। जैसे इक्वेटर में मैंने बताया कि यहाँ पे एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलेंगे, रेनफॉल बहुत ज्यादा होगी, बहुत सारे टाइप के फ्लोरा फॉना। तो जैसे जैसे ऊपर जाएंगे रेनफॉल चेंज होती है, क्लाइमेट चेंज होता है, टेम्परेचर चेंज होता है, so you won't be getting what same type of biodiversity. It is the spectrum, the horizon of biodiversity narrows down. There is less type of species. Okay, इस वजह से वहाँ पे जो नेचुरल रिसोर्सेज है उसका इशू हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल ट्रीज अगर कम होंगे तो नेचुरल रिसोर्सेज जो ट्रीज से मुझे मिलता है वो कम मिलेंगे, एनिमल से जो मिले मिलता है वो कम मिलेगा डेफिनेटली। तो उस वजह से मेरा ह्यूमन ऑक्यूपेशन में क्या होगा, एडवर्सली इफेक्ट। अगर वहाँ मुझे खेती करना है बट मैं नहीं कर पाऊंगा, मुझे खेती आता है तो वहाँ खेती में नहीं कर पाऊंगा सपोज, तो मुझे कुछ और डेफिनेटली अलग सीखना पड़ेगा, तो वो मुझे एडवर्सली इफेक्ट कर सकता है। इन मानसून रीजन जहाँ होती है वहाँ एग्रीकल्चर और लाइट एक्टिविटीज मेन ऑक्यूपेशन, डेफिनेटली जहाँ बारिश में खेती करना पसंद करूंगा। इक्वेटोरियल रीजन में
गैदरिंग ऑफ गम, हनी, रबर एंड लाख एक्सेट्रा। देखो ये सब जो है गम, हनी, रबर, लाख एक्सेट्रा, ये सब ट्रीज से मिलते हैं, ठीक है। तो ये सब इक्वेटोरियल रीजन में मैंने क्या बोला, ट्रीज बहुत सारे होंगे, तो ये सब ट्रीज से मुझे मिलते हैं। ये फॉरेस्ट प्रोड्यूस, फॉरेस्ट से मिलेगा, वो मैं क्या बोलूंगा, फॉरेस्ट। टाइगा जो है सॉफ्टवुड फॉरेस्ट, टाइगा में क्या बोला, लकड़ी फटाफट आप काट सकते हो। टुंड्रा टाइगा, तो लकड़ी वहां पे फटाफट कट जाएगी, तो वो सॉफ्टवुड फॉरेस्ट आप निकाल सकते हो। तो वहाँ पे लंबरिंग मेरा मेन ऑक्यूपेशन बन जाएगा। फिर टुंड्रा रीजन में मेन ऑक्यूपेशन हंटिंग फिशिंग, वहाँ कुछ है नहीं, झाड़ वाड़ नहीं लगा सकते आप, ग्रासेस ग्रीनरी कुछ नहीं। वहाँ क्या होगा, मछली पकड़ो, और क्या कर सकते हो। एक्सटेंसिव फार्मिंग इज अंडरटेकन इन ग्रासलैंड नाउडेज। अभी जो ग्रासलैंड है वहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग, फार्मिंग कर रहे हैं, क्योंकि ग्रास बेच के कितना पैसा है, इस वजह से मैं क्या कर रहा हूँ, वहाँ पे फार्मिंग कर रहा हूँ। Significant differences are found in the environment and available resources. जितने अलग अलग नेचुरल रीजन है वहाँ पे अलग अलग डिफरेंसेस मिलेंगे, और वो भी सिग्निफिकेंट। एक जगह झाड़ है तो एक जगह झाड़ है सब अर्थ एक ही है, बट सोचो कितना डाइवर्सिफिकेशन, उस वजह से मेरा फ्लोरा फौना वगैरह सब कुछ चेंज। द यूज ऑफ रिसोर्सेज इज डिपेंडेंट ऑन दैट रीजन्स प्रोग्रेस, साइंस एंड। अब मैं इस रिसोर्सेज को किस हिसाब से यूज कर रहा हूँ, वो मेरा डिटरमाइन करेगा कि मैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कितनी तरक्की करूँ। बहुत सारी कंट्रीज, अराउंड 200 प्लस छोटे छोटे कंट्रीज है, आइलैंड्स है, टेरिटरीज है। तो उसमें कुछ गिनी चुनी कंट्री का आप नाम सुनते होंगे कि ये कंट्री ज्यादा डेवलप्ड है, अमेरिका है, फिर यूरोप है, इंडिया है, चाइना है, ब्राजील है, रशिया है। क्यों सबका नाम है, क्योंकि देयर इज डिफरेंस हाउ दे आर यूजिंग देयर रिसोर्सेज दैट दे आर लिविंग। सिमिलरली हिस्ट्री एंड कल्चर भी डिपेंड करता है कि आप कितना आगे बढ़ रहे हो। मेरी हिस्ट्री क्या थी और आज मैं कहाँ हूँ, वो भी डिटरमाइन करता है कि मैंने कितना आज डेवलप किया। So this was the small chapter about natural regions. In short, ये आपको प्लॉटिंग करना है कि यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ पे क्या मिलेगा, and just wait. Okay. Different regions are 6 plus 3 9, ये आपको ध्यान रखना है। Try and answer the questions on this. So, you guys take care, stay inside and stay home. Okay. Bye.